Now we will study about creation of money supply. How the money create, how the money create in the market. So let's first understand the role of commercial bank. Commercial banks. ठीक है? Commercial bank accept deposit, provide loan. When commercial bank accept deposit, does it give return to the bank? No. So this is the liability for the bank. Accept accept deposit is the liabilities for the bank. When the bank provide loans to the factories, firms, governments, etc., then it is considered asset because it give return to the bank. So liability means something that doesn't give return, and asset which gives return. यहाँ पे रिटर्न आ रहा है ना, रिटर्न है, यहाँ पे नो रिटर्न. ओके. सो डिपॉजिट है, सो जो बैंक का डिपॉजिट है वो दो टाइप का होता है. एक है डिमांड डिपॉजिट और एक है टाइम डिपॉजिट. जो डिमांड डिपॉजिट है, जो जो डिपॉजिट है आप इजीली विड्रॉ कर सकते हैं. जो डिपॉजिट है आप इजीली विड्रॉ कर सकते हैं when needed. Example, saving account, current account, deposit, 100% money can be withdraw easily. And जो टाइम लाइबिलिटी है, you can't withdraw the you can't withdraw the deposit immediately. If you want to withdraw the money immediately, you have to lose the return. Okay, so withdraw can't be withdraw easily. So can't be withdraw. If you want to withdraw that money, you have to lose the return. So example, FD हो गया. So this is the time liability. So it is called time liabilities for the bank. And this is called demand liability for the bank. So the bank considered both of them, demand and time liability. Demand and time liability, which is called DTL of bank. Net time and net demand and time liability in DTL. ठीक है. नेट जो हमारे बैंक के पास डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज जो है, उसमें जो बैंक ऐसे कुछ पैसा है सो दूसरे बैंक के साथ या आरबीआई को दिया हुआ होता है, डिपॉजिट किया हुआ रहता है. डिपॉजिट ऑफ द बैंक विथ आरबीआई और बैंक for the purpose of short term liquidity management. So net DTL is DTL minus the deposit of the bank with RBI or bank to manage short term liquidity.
नाउ स्टडी करेंसी डिपॉजिट रेशियो विच इज कॉल्ड CDR। ठीक है, amount of money in the held in the form of currency। okay, amount of money in the form of demand deposit। so this is the so CDR is for public, CDR is considered for public। when the demand and when the demand deposit is higher, CDR is low। if the if the demand deposit is lower, the CDR is higher। now study reserve deposit ratio। reserve deposit ratio which is called RDR। total reserve of the bank by NDTL, net demand and time liability of the bank। okay, so total reserve of a bank, this reserve is not given as a loan by the bank, so this is the reserve। if you consider RDR 0.3, then 30% of the DTL is used for reserve, and the 70% of the DTL is used for loan। यही तो है। so this is 30% given as a reserve and this is 70% is for loan। now understand RBI का बैलेंस शीट। to understand the money creation, so this is liability, this is asset। जो करेंसी इन सर्कुलेशन, जो भी इंडिया में जो करेंसी सर्कुलेशन में है वो लाइबिलिटी में आता है आरबीआई का। ये अपने लोगों ने याद रखना है, करेंसी इन सर्कुलेशन। ओके, करेंसी विथ पब्लिक और अ बैंक इज द करेंसी इन सर्कुलेशन। ठीक है, जो बैंक डिपॉजिट किया हुआ है आरबीआई के पास वो भी लाइबिलिटी है आरबीआई के लिए। गवर्नमेंट डिपॉजिट है वो भी लाइबिलिटी है, एंड सम अदर IMF डिपॉजिट है, बहुत सारा है जो कि लाइबिलिटी होता है आरबीआई के लिए। एसेट क्या है इसके लिए, आरबीआई के लिए एसेट क्या है, लोन बैंक्स को देती है, गवर्नमेंट को देती है, या फिर और कंपनीज वगैरह को भी देती हैं, तो ये लोन हो गया। इन्वेस्टमेंट करती हैं, लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता हो, कॉर्पोरेट बॉन्ड में, गोल्ड में, दीज आर कॉल्ड एसेट। आरबीआई के हम लोग लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट भी बोलते हैं, लेंडर ऑफ
last resort. If a bank can't raise fund from other sources, this facility of the RBI is always open for the bank. That's why it is called lender of a last resort. Now we study creation of money supply or money multiplier. So money multiplier या फिर क्रिएशन ऑफ मनी सप्लाई. Okay, so what is high powered money? Okay, हाई पावर्ड मनी जो है वो टोटल लाइबिलिटी ऑफ द आरबीआई, जितना भी आरबीआई का जितना भी लाइबिलिटी है वो सारे को इकट्ठा हम लोग हायर पावर्ड मनी बोलते हैं. टोटल लाइबिलिटी ऑफ द आरबीआई, टोटल लाइबिलिटीज ऑफ आरबीआई. ये देखिए, अब जितना भी ये सब है ना, ये सब लाइबिलिटी है, इसी को हम लोग बोलते हैं हाई पावर्ड मनी. क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पावर होता है मनी मल्टीप्लाई करने का. आरबीआई बाई सम एसेट वर्थ एच रुपए, ठीक है, टू द सेलर. सेलर को देता है एक एच रुपए. जो सेलर है, सेलर जो है एच रुपए का क्या करता है, h/2 अपने पास रखता है, करेंसी के फॉर्म में रखता है, और h/2 है सो डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में रखता है. जो h/2 जो डिमांड डिपॉजिट है, जो बैंक है h/2 के साथ क्या करेगा, जैसे कि देखो सेलर जो है एच रुपए का चेक था इसके पास, ठीक है, चेक था, ये बैंक को देता है, ठीक है, बैंक को देता है, और बैंक में h/2 डिमांड डिपॉजिट रखता है, h/2 करेंसी रखता है. तो बैंक h/2 का क्या करता है, h/2 का क्या करता है कि जो 20% h/2 का है उसको रिजर्व रखता है, ठीक है, 20% ऑफ h/2 को रिजर्व रखता है. ओके, और 80% h/2 का लोन देता है, ठीक है. लेट से कि 0.8 h/2 ये लोन दिया फर्म को, ठीक है. जो फर्म ने क्या करा, इसे वर्कर को तनख्वाह बांटी, ठीक है, तनख्वाह बांटा. जो 0/8 h/2 है, जो वर्कर ने क्या किया, जो तनख्वाह को बैंक में रखा, जो बैंक में रखा तो इसका 0.8 h/2 को जो बैंक है सो इसका 20%, इसका जो 20% है वो रिजर्व रखा, और जो 80% है 0.8 का उसको लोन दिया, लोन टू द पब्लिक, ठीक है. So the money multiplier is money
मल्टीप्लायर हमारा बढ़ते गया ना। पहला जो पैसा था वो वर्थ ₹1 का था, ₹1 का चेक था, ठीक है। फिर वो 0.8 H/2 हुआ, ठीक है। प्लस फिर 0.8 फिर 0.8/2 का स्क्वायर हुआ। ये हुआ ना, यहाँ पे हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे जो है 0.664 आ रहा है ना। हाँ, ठीक है। तो ये जो है सो क्रेडिट क्रिएशन होते गया। जैसे मनी सप्लाई हुआ वैसे क्रेडिट क्रिएशन बैंक के थ्रू किया होते रहा। क्रेडिट क्रिएशन बैंक के थ्रू होते रहा। सो हायर पावर्ड मनी में जो पोटेंशियल है टू क्रिएट हायर अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई। ओके, सो हाई पावर्ड मनी में पोटेंशियल है हायर अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई क्रिएट करने का। इसके पीछे जो मतलब मनी मल्टीप्लाई में जो हायर अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई होने का जो रीज़न है वो क्रेडिट क्रिएशन होते रहा बैंक के थ्रू। क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक, लोन देकर। लो होना चाहिए, मतलब करेंसी के फॉर्म में हम कम रखें, बैंक डिपॉजिट के फॉर्म में ज़्यादा रखें, तो ये होगा मनी मल्टीप्लायर होगा। सो दीज आर द थिंग। ठीक है, यार है सो यदि लो रहेगा तो ज़्यादा मनी मल्टीप्लायर होगा, मल्टीप्लायर होगा। क्यों? क्योंकि डिमांड डिपॉजिट ज़्यादा है वहाँ पे। डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में जो पैसा है वो ज़्यादा है, इसलिए मल्टीप्लायर हो रहा है। सो थैंक यू।